All right, students, let's start our lecture. Good morning. So let's start with revision, what we have done in last lecture, right? Within last lecture, we have started with the example that is login control simulation. That is the controls that are present in the login tab of toolbox, right? That is create user wizard control, change password, password recovery, login name, login status, login view, right? These are the controls which are present in login tab of the toolbox, right? And we have started with the example that how we can simulate those controls within our application. So for that, yesterday we have created one website. Within that, we have seen that we have to first create the database, and within database we have created one table, that is TBL user. After that, we have seen that we need to create 4 pages, that is default.aspx, on which we will implement the functionality for create user wizard control. And after that, login page.aspx, change password.aspx, and forget password.aspx, right? So these were the 4 pages which we need to create within our website. After that, we have already seen the functionality for 2 pages, that is default.aspx, on which we have implement the functionality to create the user. That is, whenever user wants to register on our website, user can open this page and fill the values for 6 different fields, that is username, password, confirm password, email, security question and answer, right? And those fields are inserted within the table, that is TBL user. After that, we have also seen the functionality of login page.aspx. On login page.aspx, we have created 2 views, that is anonymous template and logged in template. Anonymous template will be provided to the user who has not logged in to our website, right? And login template is provided to the user who will be the registered user for our website. And we have seen that how we can check that whether the user is registered user or not, right? We can retrieve the count for that particular record, right? If the username and password matches, and after that we can check that we can provide the view according to the values that are, or according to the credentials that are given by the user on the login page.aspx. Means if the credential matches with the record that is present within our database, then obviously we will provide the logged in view to the user, and if the credentials that doesn't matches with the record that is with the records that are present within our table, we will display the message to the user that is user does not exist, right? So these were the things which we have seen in last lecture. Now within this lecture we will see remaining pages, that is change password.aspx and forgot password.aspx. As you already know that change password control which is present in login tab of toolbox, right? उसके अंदर किस हिसाब से पूरा डिजाइनिंग था? Again, it was divided into 2 views, that is change password and success, right? Change password view के अंदर क्या था? हम वहां पे जो भी हमारा ओल्ड पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड से चेंज करने के लिए वैल्यूज दे सकते हैं, राइट? एंड सक्सेस जो व्यू था उसके अंदर हमें मैसेज मिलेगा दैट इज पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, राइट? सो if I want to design the page for change password functionality, right, or more precise if I want to simulate change password control, so obviously मुझे यहाँ पे multi view control का use करना पड़ेगा, because multi view control is the control कि जो हमें एक ही पेज पे एक से ज्यादा view provide कर सकता है, right? So the first control which I have placed on this page is multi view control, राइट? अब मल्टी व्यू कंट्रोल एज द नेम सेज इसके अंदर मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई विद इन मल्टी व्यू कंट्रोल आई हैव प्लेस्ड 2 व्यूज, राइट? जो फर्स्ट व्यू है वो चेंज पासवर्ड के लिए है, और जो सेकंड व्यू है दैट इज फॉर सक्सेस, राइट? अब ये 2 व्यू प्लेस करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सेट फॉर मल्टी व्यू कंट्रोल इज इट्स इंडेक्स, एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी, राइट? So by default active view index property क्या होगी? That is -1,
राइट। लेकिन हमें क्या सेट करना है, 0, बिकॉज हमें जब भी ये पेज लोड होगा हमें फर्स्ट व्यू यूजर को डिस्प्ले करना है, दैट इज व्यू 1 हमें यूजर को डिस्प्ले करना है। और हमें पता है कि मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर हम जितने भी व्यूज प्लेस करेंगे, राइट, उसकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट होगी दैट विल स्टार्ट्स विद 0। मतलब जो व्यू 1 होगा उसकी इंडेक्स होगी 0, व्यू 2 होगा उसकी इंडेक्स होगी 1। Sorry, right? So first property that we need to set for multi-view control is active view index property, और हमें उसको 0 से सेट करना है, right? After that view 1 के अंदर मुझे चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए डिजाइनिंग करना है। हमें पता है कि अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। ओल्ड पासवर्ड यूजर के पास से लेना पड़ेगा, न्यू पासवर्ड यूजर के पास से लेना पड़ेगा, और कंफर्म न्यू पासवर्ड हमें यूजर के पास से लेना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर पाए, अगर ये ओल्ड पासवर्ड और यूजर नेम टेबल के अंदर मैच होता है जो भी रिकॉर्ड के साथ, राइट, वो रिकॉर्ड के अंदर जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है वो हम अपडेट कर देंगे, ये जो न्यू पासवर्ड यूजर एंटर करेगा उससे, राइट। अगेन आई रिपीट, हमें इसके ऊपर कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है कि अगर यूजर जो भी ओल्ड पासवर्ड देता है, राइट, और यूजर नेम तो ऑब्वियसली हमें सेशन में से मिलेगा बिकॉज लॉगिन पेज के ऊपर हमने सेशन के अंदर यूजर नेम स्टोर करवाया था, राइट। सो जो सेशन में से यूजर नेम रिट्राइव होता है उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूजर ओल्ड पासवर्ड एंटर करेगा, राइट, अगर ये दोनों चीज कोई भी रिकॉर्ड के साथ टेबल के अंदर मैच होती है, राइट, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फील्ड हम अपडेट कर देंगे। वो किससे अब हम अपडेट करेंगे, दैट इज द न्यू पासवर्ड दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर, राइट। सो ये चीज हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। एंड इफ आफ्टर यहाँ पे जो वैल्यूज यूजर एंटर करेगा, राइट, और उसके बाद चेंज के ऊपर क्लिक करेगा, if the password has been updated successfully within our table, तो हमें यूजर को view 2 डिस्प्ले करना है, that is password change successfully, right? So this is the functionality that we need to implement. इसीलिए view 1 के अंदर मैंने टेबल रखा है, राइट, ऑब्वियसली टेबल इज ऑफ 4 rows 2 columns, राइट, और उसके बाद फर्स्ट रो के अंदर मैंने लिखा ओल्ड पासवर्ड, अलॉन्ग विद दैट मैंने वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज txt opwd, दैट इज ओल्ड पासवर्ड। सेकेंड रो के अंदर मैंने पहले लिखा न्यू पासवर्ड, उसके साथ साथ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया, राइट, और उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की, दैट इज txt npwd, that is new password, right? And within third row first I have written confirm password, आप यहाँ पे confirm password की जगह confirm new password भी लिख सकते हो, right? that is confirm new password। उसके साथ साथ मैंने उसके लिए भी एक text box control रखा, that is I have set its id property as txt cnpwd, right? और उसके बाद मैंने एक बटन कंट्रोल प्लेस किया, राइट, जिसकी आईडी प्रॉपर्टी है दैट इज btn चेंज और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज, ताकि अगर यूजर ये चेंज बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें क्वेरी फायर करनी है टेबल के ऊपर जिसके अंदर पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, राइट। लाइकवाइज ये जो सेकेंड व्यू है, राइट, जो हम सक्सेस की तरह यूज करेंगे उसको, राइट। सो उसके अंदर हमें पहले यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना है, दैट इज पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, राइट, एंड आफ्टर दैट एक कंटिन्यू बटन रखा है। कंटिन्यू बटन की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn कंटिन्यू और टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की है कंटिन्यू, राइट। सो कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम यूजर को कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे, ऑब्वियसली लॉगिन पेज के ऊपर हम यूजर को नेविगेट कर देंगे, right? So this is the design that you need to create for change password, right? So now let's see the code, right? Obviously if we want to interact with the database तो हमें पहले तो 3 import statements हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, right? We have already seen these 3 import statements in the last lecture on both the pages, that is default.aspx and login page.aspx, राइट। सो वही 3 import statements मैंने यहाँ पे लिखे हैं, that is import system.data, second is import system.data.sql client and third is import system.web.content,
configuration. हमें पता है that is system.data.sql client. This namespace is used for the classes that we need to use for interacting with SQL Server database, right? And this third namespace, that is system.web.configuration, right? This namespace contains the class through which we can retrieve the values which are present in web.config file, right? So इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 import statements यहाँ पे लिखे हैं, right? Now the another important thing, that is first we need to do is we need to create the object of SQL connection class, right? SQL connection class का object create करने के लिए मैंने क्या लिखा है, deem con as new SQL connection, right? मतलब जो object create किया है that is con, right? और object creation time पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे connection string pass करनी पड़ेगी, और वो connection string हमें कहाँ से मिलेगी? Obviously that connection string we need to retrieve from web.config file. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि हमने web.config फाइल con नेम से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग con नेम से web.config फाइल के अंदर स्टोर की है, right? So if I want to retrieve the value for that particular connection string, so मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, that is web configuration manager class, right? उसके अंदर जो connection strings का जो collection है वो मुझे यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्राइव करनी है, और हमें पता है कि हमने web.config फाइल के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट सेट किया था फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग दैट वाज con, राइट? सो वो मैंने यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स कलेक्शन के अंदर लिख दिया, राइट? और उसके बाद मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो रिट्राइव होगी उसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, right? So this is the parameter which is in terms of connection string, right? जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम के ऊपर स्पेसिफाई करना है, right? और ऑब्वियसली कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का नेम हमने क्या दिया है, that is con, right? Now the first thing that is present on change password page is change button, right? So उसकी क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, चेंज बटन की क्लिक इवेंट पे हमें अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच होते हैं तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की 2 फील्ड्स दैट इज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को हमें चेंज करना है, दैट इज अपडेट करना है, राइट? सो ऑब्वियसली इफ वी वांट टू चेंज समथिंग विद इन टेबल वी नीड टू फायर अपडेट क्वेरी, राइट? हमें पता है कि अगर हमें टेबल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करने हैं, राइट? तो हमें कौन सी क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, वी नीड टू फायर अपडेट क्वेरी ऑन द टेबल, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्वियसली अगर मुझे क्वेरी का यूज करना है तो SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है दैट इज CMD, राइट? और ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एज अ पैरामीटर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं. First parameter is the query and the second parameter is the object of connection class. Query तो obviously update query होगी because मुझे टेबल के अंदर modification करने हैं, right? So update query मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, that is update tbl user which is the name of the table. Set मुझे कौन सी 2 field set करनी है, that is password and confirm password, right? So these are the 2 fields that I want to modify within my table. So मैंने यहाँ पे वो दोनों फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा स्पेसिफाई की और उसके लिए मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर. पासवर्ड में वैल्यू कहाँ से आएगी, npwd दैट इज न्यू पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट इज cpwd दैट इज कंफर्म न्यू पासवर्ड, राइट? सो ये जो 2 वैल्यू यूजर यहाँ पे पेज के ऊपर एंटर करेगा ये 2 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट? वो वैल्यू हम ये पैरामीटर के लिए सेट कर देंगे. लेकिन ये अपडेट हमें कब करना है, जब ये यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड मैच होती है तभी ये अपडेट क्वेरी फायर होनी चाहिए. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज लिखा, राइट? वेयर क्लॉज के अंदर वी हैव स्पेसिफाइड 2 क्राइटेरिया दैट इज यूजर नेम इज इक्वल टू @uname, मतलब हम जो यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे वो मैच होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पासवर्ड यहाँ पे यूजर प्रोवाइड करेगा दैट इज इन ओल्ड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, राइट? वो यहाँ पे मैच
होना चाहिए। दैट्स वाई पासवर्ड के साथ मैंने पैरामीटर कौन सा लिया, दैट इज OPWD, दैट इज ओल्ड पासवर्ड, राइट। मतलब ये क्वेरी का मीनिंग क्या होता है, अगर यूजर नेम जो हम सेशन में से रिट्राइव करेंगे एंड पासवर्ड, राइट, जो यहाँ पे यूजर ओल्ड पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा, राइट, अगर ये दोनों चीज मैच होती है कोई भी रिकॉर्ड के साथ जो हमारे टेबल के अंदर, दैट इज TBL यूजर टेबल के अंदर प्रेजेंट है, राइट, अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो हमें TBL यूजर की ये जो दो फील्ड्स है, दैट इज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, उसको मॉडिफाई करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस टाइप ऑफ अपडेट क्वेरी। और उसके साथ साथ बाय द एंड हमने क्या उसके अंदर स्पेसिफाई किया है, वी हैव आल्सो स्पेसिफाइड द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। All right. Now within this update query, there are 4 parameters, right? और वो 4 parameters के लिए data type और value हमें provide करनी पड़ेगी. That's why I have used the statement that is cmd.parameters.add, right? cmd.parameters.add के अंदर first parameter जो मैंने specify किया है, that is npwd, right? That is over here, right? उसकी data type मैंने specify की, that is varchar, और उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी मैंने सेट की, दैट इज txt npwd.text। मतलब ये जो पासवर्ड फील्ड है जो अपडेट के अंदर हमें मॉडिफाई करनी है, राइट, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, दैट इज txt npwd, दैट इज न्यू पासवर्ड, वहां से हमें इसके लिए वैल्यू मिलेगी, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड पैरामीटर मैंने ऐड किया, दैट इज cpwd, दैट इज फॉर confirm password, right? और that is @cpwd, उसकी डेटा टाइप क्या है, that is varchar, और वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वैल्यू सेट की, कहाँ से मिलेगी मुझे वैल्यू, that is txt cnpwd, txt cnpwd, that is the id property of the third text box, that is confirm new password, right? After that, third parameter is for old password. That's why the name of the parameter is @opwd. उसकी डेटा टाइप क्या है, that is varchar. वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है और वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, that is txt opwd, that is the first text box, that is for old password, right? वहां से वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे और ये पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर हम पास कर देंगे, right? After that, again the last parameter, that is for username, that is @uname. Again the data type is varchar, and over here हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमें वैल्यू रिट्राइव करनी है सेशन में से, राइट, सेशन के अंदर जो uname का वेरिएबल है हमें उसमें से वैल्यू रिट्राइव करनी है। और ये जो सेशन के अंदर जो uname जो क्रिएट हुआ है वो हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, हमने लॉगिन पेज के ऊपर, राइट। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन करता है, राइट, देन एट दैट टाइम हमने सेशन के अंदर वो पर्टिकुलर यूजर नेम को ऐड किया था ऑन लॉगिन पेज, राइट। मतलब अगर क्रीडेंशियल्स टेबल के अंदर मैच होते हैं लॉगिन पेज के ऊपर, इट मीन्स कि यूजर इज द रजिस्टर्ड यूजर फॉर अवर वेबसाइट, और उस वक्त हमने वो पर्टिकुलर यूजर नेम सेशन के अंदर ऐड किया था विद इन यूनेम वेरिएबल। सो वही वैल्यू हम यहाँ पे रिट्राइव करेंगे, राइट, दैट इज सेशन में से यूनेम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिट्राइव होगी और यूनेम पैरामीटर के अंदर वो असाइन हो जाएगी, right? So these are the 4 parameters that we need to add for our update query, right, to modify the password within TBL user. Now again the same thing, हमारे पास कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, क्वेरी है, क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स और उसके वैल्यूज भी हमने ऐड कर दी है। नाउ द थिंग इज दैट हमें कनेक्शन को ओपन करके क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, राइट। सो आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज con.open, इससे क्या होगा, कनेक्शन ओपन हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, हमें पता होना चाहिए कि आइदर अपडेट क्वेरी फायर हुई है कि नहीं हुई है। इट मीन्स कि अपडेट क्वेरी सक्सेसफुली फायर हुई है कि नहीं हुई है, बिकॉज अपडेट क्वेरी तो फायर होगी, लेकिन अपडेट क्वेरी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हमने सेट किए हैं वो मॉडिफिकेशंस टेबल के अंदर हुए हैं कि नहीं हुए हैं,
राइट, हमें ये डिटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर अपडेट क्वेरी सक्सेसफुली फायर हुई है तो हमें यूजर को उस हिसाब से मैसेज देना है, दैट इज पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। और अगर अपडेट क्वेरी सक्सेसफुली फायर नहीं हुई है तो हमें यहाँ पे यूजर को कहना पड़ेगा दैट इज इनवैलिड पासवर्ड, राइट। इसके लिए हमें पता है कि इफ वी वांट टू फायर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी ऑन द डेटाबेस तो हमें एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड का यूज करना है, राइट। और हमें ये भी पता है कि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, जो क्या स्पेसिफाई करेगा कि वेदर द रोज आर अफेक्टेड विद दिस क्वेरी और नॉट। मतलब अगर ये अपडेट क्वेरी सक्सेसफुली फायर होती है, राइट, तो वो कितनी रोज के ऊपर उसने अफेक्ट किया है वो रिटर्न करेगा, राइट, कितनी रोज को उसने मॉडिफाई किया है वो रिटर्न करेगा। और हमें पता है कि यहाँ पे एक यूजर का एक ही रिकॉर्ड होगा टेबल के अंदर, राइट। मीन्स अगर अपडेट क्वेरी सक्सेसफुली फायर हुई है, मॉडिफिकेशंस हुए हैं टेबल के अंदर, तो वो 1 रिटर्न करेगा। ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, दैट इज 1, राइट। और अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुए हैं, राइट, मतलब वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ है, दैट इज यूजर नेम और ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, मीन्स ऐसा कोई भी यूजर हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली वो 0 रिटर्न करेगा, बिकॉज उसने टेबल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं किए होंगे। दैट्स वाई एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी की रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स अगर वो 0 रिटर्न करता है तो हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे दैट इज इनवैलिड पासवर्ड, राइट। सो उसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल दैट इज cnt which is of integer data type and after that मैंने execute non query मेथड को फायर किया जो cmd ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। सो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ये स्टेटमेंट मैंने लिखा और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट आई हैव असाइन टू cnt वेरिएबल, राइट। मतलब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ये अपडेट क्वेरी फायर करने के लिए टेबल के ऊपर जाएगा, राइट। अगर मॉडिफिकेशंस होते हैं तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं तो वो 0 रिटर्न करेगा, राइट। सो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा and after that obviously we will close the connection. So connection close करने के लिए what we need to specify, that is con dot close, right. Now within cnt variable हमारे पास वैल्यू है कि अपडेट क्वेरी ने मॉडिफिकेशंस किए हैं कि नहीं किए हैं। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट। इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा है, दैट इज इफ cnt इज इक्वल टू 1, मतलब अपडेट क्वेरी ने मॉडिफिकेशन किया है, राइट। इट मींस चेंज बटन के ऊपर हमें पता चलता है कि अपडेट क्वेरी ने मॉडिफिकेशन किया है, तो हमें यूजर को व्यू 2 के ऊपर नेविगेट करवाना है, बिकॉज व्यू 2 के अंदर हमने क्या लिखा है, उसके अंदर हमने सक्सेसफुल का मैसेज दिया है, दैट इज पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। सो ऑब्वियसली अगर यूजर क्या रिकॉर्ड मॉडिफाई हुआ है तो हम उसको व्यू 2 के ऊपर नेविगेट करवाएंगे, राइट। और व्यू 2 के ऊपर नेविगेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज मल्टीव्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1, मतलब मल्टीव्यू कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी है, हमें उसको 1 सेट करनी है। 1 मतलब मैंने आपको पहले बताया 1 इज द इंडेक्स ऑफ व्यू 2, राइट। सो जब भी ये स्टेटमेंट फायर होगा ऑब्वियसली वो यूजर को ये जो सेकेंड व्यू है वो डिस्प्ले करेगा, राइट। और एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा, एल्स पार्ट में हमने यूजर को मैसेज प्रोवाइड किया विद इन मैसेज बॉक्स दैट इज इनवैलिड पासवर्ड, राइट। ये इनवैलिड पासवर्ड मैसेज कब यूजर को दिखाई देगा, जब भी cnt की वैल्यू 1 नहीं होगी। और cnt की वैल्यू 1 कब नहीं होगी, अगर अपडेट क्वेरी ने जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन करना है वो टेबल के अंदर नहीं हुआ है मॉडिफिकेशन, तो ऑब्वियसली cnt की वैल्यू 1 नहीं होगी। और अगर cnt की वैल्यू 1 नहीं है इट मीन्स के यूजर के क्रेडेंशियल्स मैच नहीं हुए हैं टेबल के अंदर, इसलिए हम यूजर को मैसेज देंगे दैट इज इनवैलिड पासवर्ड, राइट। सो मैसेज बॉक्स के अंदर वैसे हमें मैसेज प्रोवाइड करना है यहाँ पे।
इंस्टेड ऑफ मैसेज बॉक्स, अगर जैसे हमने लॉगिन पेज के ऊपर किया था कि हमने लेबल के अंदर यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया था, अगर आपको वैसा इंप्लीमेंट करना है तो उस हिसाब से भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कंटिन्यू बटन रखा है, राइट। सो कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर आई हैव रिटन अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, बिकॉज मुझे यूजर को कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है, लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है। That's why I have written over here that is response dot redirect within parenthesis double quotation that is login page dot aspx, right? So user continue button पे कहाँ पे navigate हो जाएगा, on login page dot aspx। मतलब एक बार यूजर फिर से लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है तो वो यूजर नेम और जो न्यू पासवर्ड यूजर ने दिया है उसके हिसाब से वो फिर से लॉगिन कर सकता है, right? So students, this is all about change password.aspx पेज, जिसके ऊपर हमें यूजर को चेंज पासवर्ड करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, right? Now the last page that is remaining for this example is forgot password.aspx, right? और forgot password.aspx मतलब ये पेज कब यूज होगा, अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है, राइट? तो हमें यूजर को वो पासवर्ड रिट्राइव करके देना है, उसके लिए ये पेज यूज होगा। और अगर आपको याद हो जो हमने पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल देखा था, राइट, वो पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल के अंदर कितने व्यूज थे, देयर वेर 3 व्यूज, दैट इज यूजर नेम, क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। ये 3 व्यूज थे पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल के अंदर, राइट। सो उस हिसाब से अगर हमें वो पर्टिकुलर कंट्रोल को सिम्युलेट करना है, राइट, सो हमें अगेन कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, हमें मल्टी व्यू कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, राइट। और वो मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर हमें यूजर को 3 व्यूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, राइट। फर्स्ट व्यू वो होगा जिसके अंदर हम यूजर के पास से यूजर नेम कलेक्ट करेंगे, राइट। सेकेंड व्यू के अंदर वो पर्टिकुलर यूजर नेम के हिसाब से टेबल में से हम क्वेश्चन रिट्राइव करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी क्वेश्चन। और थर्ड व्यू के अंदर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो यूजर ने आंसर दिया होगा, अगर वो आंसर मैच होता है रिकॉर्ड के साथ कि जो हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट है, राइट, तो हम वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का पासवर्ड रिट्राइव करेंगे और थर्ड व्यू के अंदर हम यूजर को डिस्प्ले करके देंगे, राइट। अगर आपको ये पासवर्ड को आप ईमेल करवाना है तो आप यहाँ से वो फंक्शनैलिटी भी कर सकते हो, राइट। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड रिट्राइव करके पेज के ऊपर डिस्प्ले किया है, राइट। दैट्स वाई अगर मुझे इस हिसाब से मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड करने हैं, सो अगेन द सेम कंट्रोल, मुझे कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल, राइट। अगेन मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर मुझे कितने व्यूज रखने हैं, दैट इज 3 व्यू कंट्रोल मैंने रखे हैं, राइट। और ये 3 व्यू कंट्रोल प्लेस करने के बाद मुझे मल्टी व्यू कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या सेट करनी पड़ेगी, दैट इज 0, ताकि जब भी ये पेज रन हो, दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड डॉट aspx, सो 0 इंडेक्स का जो व्यू है दैट इज व्यू 1, वो यूजर को डिस्प्ले होगा, right? So this is the thing which we need to consider on all the pages, because हमने जो भी 4 pages create किए हैं वो सारे pages के ऊपर हमने क्या किया है, हमने मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज किया है। और हमें याद रखना है कि अगर हम मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज करते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इन एक्टिव व्यू इंडेक्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी दैट इज -1। -1 मतलब कोई भी व्यू डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। एंड इफ वी वांट टू डिस्प्ले पर्टिकुलर व्यू तो एक्टिव व्यू इंडेक्स में हम वो पर्टिकुलर व्यू की इंडेक्स सेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सारे पेजेस के ऊपर जब भी पेज लोड होता है हमें फर्स्ट व्यू डिस्प्ले करवाना है, दैट इज व्यू 1। और व्यू 1 की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी व्यू 1 की इंडेक्स वैल्यू होगी दैट इज 0। दैट्स वाई मल्टी व्यू कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी हम क्या सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट, that is 0, right? So this was the thing which we have already seen yesterday, right? Now first view, so first view के अंदर हमें क्या करवाना है, हमें यूजर के पास से यूजर नेम कलेक्ट करवाना है ताकि वो पर्टिकुलर यूजर नेम का पासवर्ड हम रिट्राइव करके यूजर को डिस्प्ले कर पाए,
राइट। सो मैंने यहाँ पे व्यू 1 में द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन इज यूजर नेम, और उसके साथ मैंने यूजर को एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड किया, राइट। टेक्स्ट बॉक्स की आईडी प्रॉपर्टी मैंने क्या सेट की है, दैट इज txt uname, राइट। बिलो दैट आई हैव प्लेस्ड वन सबमिट बटन, राइट। सबमिट बटन की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज btn submit, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है submit, and along with that I have placed one label control, right, जिसके अंदर मैं मैसेज प्रोवाइड करूंगी whether this username is present within my table or not, मतलब ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। वो मैसेज में ये लेबल कंट्रोल के अंदर प्रोवाइड करूंगी। और लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने क्या सेट की है, दैट इज lbl msg1, राइट। और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने empty कर दी है, राइट। सो दिस इज द डिजाइनिंग फॉर द फर्स्ट व्यू, जिसके अंदर हम यूजर के पास से यूजर नेम कलेक्ट करेंगे, राइट। नाउ विद इन द सेकेंड व्यू हमें क्या करना है, ये जो यूजर नेम यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करेगा वो मुझे यहाँ पे लेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना है, एंड अलोंग विद दैट ये पर्टिकुलर यूजर नेम के लिए टेबल के अंदर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन यूजर ने दिया था वो रिट्राइव करके ये लेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना है। एंड उसके साथ साथ मुझे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए यूजर के पास से आंसर कलेक्ट करना है। दैट्स वाई व्यू 2 के अंदर मैंने पहले क्या लिखा, दैट इज यूजर नेम। यूजर नेम के साथ साथ मैंने एक लेबल कंट्रोल रखा है, और उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज lbl यूजर, राइट। अगर आपको उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी करवानी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। मैंने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी एम्प्टी कर दी, राइट। इट मीन्स कि ये lbl यूजर जो लेबल है उसके अंदर यूजर नेम कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम प्रोवाइड करेगा वही यूजर नेम हम यहाँ पे लेबल के अंदर डिस्प्ले करेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर यूजर नेम के लिए हम टेबल में से सिक्योरिटी क्वेश्चन को रिट्राइव करेंगे, और वो रिट्राइव करने के बाद ये लेबल के अंदर वो डिस्प्ले होगा, दैट इज lbl क्वेश्चन। लेबल की आईडी प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की है, दैट इज lbl क्वेश्चन, और उसकी भी अगर आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी सेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है, राइट। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज txt ans, मतलब txt आंसर, मतलब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसके लिए जो यूजर को आंसर हमें देना है वो ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर वो इनपुट करेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने एक बटन कंट्रोल रखा है। बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn get, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है get, बिकॉज बाय क्लिकिंग ऑन दिस गेट बटन मुझे क्या करना है, अगर यूजर नेम और आंसर टेबल के अंदर मैच होता है तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो पासवर्ड है वो मुझे गेट करना है, वो मुझे फैच करना है, या फिर वो मुझे रिट्राइव करना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे गेट बटन प्लेस किया है, एंड अलोंग विद दैट मैंने एक लेबल कंट्रोल भी प्लेस किया जिसके अंदर मैं मैसेज प्रोवाइड करूंगी अगर ये आंसर मैच नहीं होता है तो, राइट। इसलिए उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज lbl msg2, राइट। और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने empty कर दिया है, राइट। मीन्स अगर यूजर नेम और आंसर कोई भी रिकॉर्ड के साथ हमारे टेबल के अंदर मैच नहीं होता है तो हम उस हिसाब से यूजर को मैसेज प्रोवाइड करेंगे ये पर्टिकुलर लेबल कंट्रोल के अंदर, राइट। एंड द लास्ट व्यू दैट इज व्यू 3। व्यू 3 के अंदर हमें सिंपल क्या करवाना है, जो पासवर्ड हमने पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रिट्राइव किया है टेबल में से वो हमें यूजर को डिस्प्ले करवाना है, राइट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा योर पासवर्ड, और उसके साथ साथ मैंने एक लेबल कंट्रोल रखा है, और लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने क्या सेट की है, दैट इज lbl pwd, दैट इज lbl पासवर्ड, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी मैंने empty कर दिया है, राइट। एंड ऑब्वियसली अलोंग विद दैट हमें एक बटन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यूजर अपना पासवर्ड रिट्राइव करके फिर से लॉग इन कर सके। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रखा। बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn कंटिन्यू, राइट। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है कंटिन्यू।
मतलब ये कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे, ताकि ये पासवर्ड रिट्राइव होने के बाद यूजर फिर से अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाए, राइट। सो दिस इज द डिजाइनिंग फॉर फॉरगॉट पासवर्ड पेज के जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, राइट। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ दिस फॉरगॉट पासवर्ड पेज, राइट। सो हियर इट इज। हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम अगर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज 3 पेजेस के ऊपर हमने जो 3 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखे थे वही सेम इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखने हैं, दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, import system.data.sql client and import system.web.configuration, right? ये नेम स्पेसिस का सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी पता है, right? After that, the first thing that we need to do is to create the object of SQL connection class. So यहाँ पे वो object create हुआ है, that is dim con, that is the object name as new SQL connection. और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है, web.config फाइल के अंदर है। web.config फाइल में से वैल्यू रिट्राइव करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास का यूज किया, दैट इज वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। मुझे con नेम की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो रिट्राइव करवानी है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर con, राइट। एंड सॉरी, along with that मैंने connection string जो property है वो मैंने यहाँ पे use की है, that is over here, right? Okay, now the first button that is present that is submit button which is present in view 1। मतलब जब भी यूजर यूजर नेम एंटर करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये यूजर नेम के लिए रिट्राइव करवाना है। दैट्स वाई सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर क्या करेंगे, हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे, और सिलेक्ट क्वेरी फायर करने के साथ साथ हम रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे, राइट। कौन से यूजर के लिए रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे, जो यूजर का नेम यहाँ पे यूजर ने दिया है, राइट, वो पर्टिकुलर यूजर का यूजर नेम के हिसाब से हम रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे। That's why submit बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर the first thing that I have done is to create the object of SQL command class, because मुझे query specify करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dim cmd as new SQL command, right? ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम के ऊपर मैंने क्या किया, सिलेक्ट क्वेरी लिखी, that is select asterisk from tbl user where username is equal to @uname, राइट। और उसके साथ साथ मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट, टीबीएल यूजर के अंदर से टेबल के अंदर से हमें क्या फैच करवाना है, रिकॉर्ड फैच करवाना है। कौन सा रिकॉर्ड फैच करवाना है, जिसका यूजर नेम यहाँ पे मैच होता है। और ये यूजर नेम हमें कहाँ से मिलेगा, यूजर नेम हमें ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में से मिलेगा, दैट इज txt uname। सो ऑब्वियसली पैरामीटर के अंदर हम उसकी वैल्यू पास करेंगे, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द स्टेटमेंट दैट इज cmd.parameters.add, राइट। उसके अंदर मैंने ये जो यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है वो यहाँ पे मैंने लिखा, दैट इज @uname। उसकी डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई की, दैट इज varchar। उसके लिए वैल्यू मुझे रखनी है, राइट, स्पेसिफाई करनी है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज txt uname.text, राइट। मतलब ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो यूजर नेम होगा वो मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर पास कर दिया। नाउ द सिंपल थिंग, मुझे क्या करना है, कनेक्शन ओपन करना है, रिकॉर्ड रिट्राइव करना है, राइट, और उसके हिसाब से मुझे आगे फंक्शनलिटी करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट दैट इज con.open, मतलब कनेक्शन ओपन किया। अब मैंने पूरा रिकॉर्ड रिट्राइव किया है, राइट। सो पूरे रिकॉर्ड में से अगर मुझे इंडिविजुअल फील्ड्स चाहिए, राइट, ओवर हियर आई कैन यूज 2 डिफरेंट थिंग्स, either I can use data reader or I can also use over here data set, right? मैं दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ पे यूज कर सकती हूँ।
मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पे डेटा रीडर यूज किया है। एंड वी नो कि अगर मुझे डेटा रीडर को यूज करना है, राइट, मुझे पहले उसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द स्टेटमेंट दैट इज डीम dr एज SQL डेटा रीडर। हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करना है। दैट्स व्हाई आई हैव स्पेसिफाइड डीम dr as SQL data reader, राइट। फिर मैंने मेथड फायर की, दैट इज एग्जीक्यूट रीडर, जो कमांड ऑब्जेक्ट की है, राइट, दैट इज cmd.execute जो मेथड फायर हुई, राइट। उसके हिसाब से जो भी रेफरेंस रिट्राइव होता है वो dr के अंदर असाइन हो जाएगा, दैट इज डेटा रीडर का जो रेफरेंस है उसके अंदर असाइन हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले रिकॉर्ड को रीड करना है जो डेटा रीडर के अंदर प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा, इफ dr.read, मतलब अगर ये रीड मेथड सक्सेसफुली फायर होती है, इट मींस dr के अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट। सो दैट्स वाई dr.read मैंने यहाँ पे चेक किया। अगर रीड परफेक्टली होता है, मतलब रिकॉर्ड है, तो पहली चीज मुझे क्या करनी है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर ने नेम एंटर किया था, दैट इज यूजर नेम एंटर किया था, वो मुझे LBL यूजर जो लेबल है उसके अंदर मुझे असाइन करना है। सो दैट थिंग आई हैव डन ओवर हियर, that is lbl user.text is equal to txt uname.text, right? The second task that I need to do is जो क्वेरी के हिसाब से क्वेश्चन रिट्राइव हुआ है वो क्वेश्चन मुझे ये LBL क्वेश्चन जो लेबल है उसके अंदर डिस्प्ले करवाना है। That's why I have written over here, that is LBL question.text is equal to dr.getString and the index of the field, that is 4, because हमें पता है कि हमने टेबल के अंदर जो TBL यूजर टेबल है उसके अंदर जो क्वेश्चन की फील्ड है, राइट, वो कौन सी इंडेक्स के ऊपर है, राइट। द सिक्योरिटी क्वेश्चन फील्ड इज प्रेजेंट ऑन द पोजीशन दैट इज इंडेक्स इज 4, राइट, मतलब वो 5th फील्ड है। मीन्स अगर वो 5th फील्ड है तो उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 4, बिकॉज ऑब्वियसली फील्ड की इंडेक्स वैल्यू भी स्टार्ट होती है 0 से। So see over here within Server Explorer, here is TBL user table. Username is on 0, password is on 1, confirm password is on 2, email is on 3 and security question field is on 4th index. That's why मैंने यहाँ पे dr.getString and within parenthesis I have specified 4, मतलब security question retrieve होके ये लेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को ये सेकंड व्यू डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे यूजर को ये सेकंड व्यू डिस्प्ले करना है। तो इफ आई वांट टू नेविगेट फ्रॉम फर्स्ट व्यू टू सेकंड व्यू, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई नीड टू सेट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या सेट किया, दैट इज मल्टीव्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। प्लस इक्वल टू 1 मतलब पहले 0 होगा तो प्लस इक्वल टू 1 करूंगी, दैट इज +1 मैंने किया, सो इंडेक्स क्या सेट हो जाएगा, 1। आप यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस इक्वल टू 1, राइट। इफ ये dr.read सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है, दैट इज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इट मीन्स ऐसा कोई भी यूजर नेम हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, यूजर को एल्स कंडीशन के अंदर मैसेज प्रोवाइड करना है, दैट इज इनवैलिड यूजर नेम। मतलब यहाँ पे ये LBL MSG1 है, वो लेबल के अंदर यूजर को मैसेज मिल जाएगा, दैट इज यूजर डज नॉट एक्ट, मतलब ऐसा कोई भी यूजर नेम टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इनवैलिड यूजर नेम, राइट। और हमें क्या करना है, उसके बाद डेटा रीडर को क्लोज करना है और कनेक्शन को क्लोज करना है, राइट। मतलब सबमिट बटन के ऊपर हमने यूजर नेम के हिसाब से क्वेश्चन रिट्राइव किया और व्यू 2 के अंदर यूजर नेम और क्वेश्चन यूजर को डिस्प्ले किया अगर वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो। अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम यूजर को ये लेबल के अंदर मैसेज देंगे, दैट इज इनवैलिड यूजर नेम, राइट। नाउ आफ्टर दैट देयर इज वन बटन, दैट इज गेट बटन। गेट बटन के ऊपर हमें क्या करना है, जो यूजर यहाँ पे आंसर इनपुट करेगा, राइट, वो हमें टेबल के अंदर मैच करना है
अगर आंसर मैच होता है तो हमें पासवर्ड को रिट्राइव करना है, राइट। सो अगेन गेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने एक क्वेरी लिखी। क्वेरी लिखने के लिए मैंने एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड। मैंने क्वेरी क्या लिखी है, आई हैव रिटन द क्वेरी दैट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक कॉमा पासवर्ड। मतलब मुझे सॉरी मुझे टू चीज रिट्राइव करनी है, टू वैल्यूज मुझे रिट्राइव करनी है, दैट इज काउंट एंड अलोंग विद दैट आई आल्सो वांट टू रिट्राइव पासवर्ड फ्रॉम tbl यूजर, राइट। कौन से क्राइटेरिया के ऊपर से मुझे ये दोनों चीज रिट्राइव करनी है, दैट इज वेर यूजर नेम इज इक्वल टू @uName एंड आंसर इज इक्वल टू @answer। मतलब ये जो यूजर नेम है और ये जो आंसर है, ये दोनों चीज रिकॉर्ड के अंदर मैच होनी चाहिए, तो मुझे उसका पासवर्ड रिट्राइव करवाना है और उसका काउंट भी मुझे चाहिए, राइट। और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, राइट, तो बाकी की जो फील्ड है जिसके साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं किया है वो हमें यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई विद इन ग्रुप बाय क्लॉज आई हैव रिटन यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। सो दिस इज द क्वेरी। हमें क्या करना है, सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है। सिलेक्ट क्वेरी के अंदर मैंने क्राइटेरिया लिखा है कि यूजर नेम और आंसर रिकॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए, और अगर वो मैच होता है तो मुझे पासवर्ड रिट्राइव करवाना है और उसका काउंट भी मुझे चाहिए। एंड अलोंग विद दैट मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट। नाउ देयर आर टू पैरामीटर्स विद इन दिस क्वेरी, दैट इज यूजर नेम एंड आंसर। सो वो दोनों पैरामीटर्स मैंने पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड किए, उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई की, दैट इज varchar, और उसके लिए मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, राइट। सो यूजर नेम के लिए वैल्यू कहाँ से मिलेगी, दैट इज txt uname में से मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट इज ओवर हियर। आप दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज दिस lbl यूजर लेबल और यू कैन ऑल्सो यूज दिस txt uname लेबल। मैंने यहाँ पे txt uname यूज किया है, दैट इज txt uname डॉट text। और आंसर जो पैरामीटर है उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट इज txt answer डॉट text विच इज दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट। सो दोनों पैरामीटर्स के लिए वैल्यू स्पेसिफाई हो गई। अब अगेन द सेम थिंग, मुझे कनेक्शन को ओपन करना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर con डॉट ओपन। नाउ अगेन द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया है, राइट, हम डेटा रीडर का यूज करेंगे। सो डेटा रीडर को यूज करने के लिए फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड reference of SQL data reader class, that is dr, right। query execute करने के लिए मैंने method use की, that is execute reader। so मैंने statement लिखा dr is equal to cmd dot execute reader। अगर queries execute होती है तो उसका जो reference होगा वो dr के अंदर assign हो जाएगा, right। and within if condition, right, मैंने check किया, that is if dr dot read, मतलब dr के अंदर अगर record है तो ये रीड मेथड सक्सेसफुली फायर होगी। उसके साथ साथ मैंने दूसरी कंडीशन लिखी, दैट इज इफ dr डॉट गेट एसक्यूएल इन 32 एंड विद इन पैरेंथेसिस आई हैव स्पेसिफाइड 0, बिकॉज हमने जो वैल्यूज रिट्राइव की है देयर आर टू वैल्यूज, दैट इज काउंट एंड पासवर्ड। सो 0 पोजीशन पे काउंट होगा और 1 पोजीशन पे पासवर्ड होगा। इट मीन्स अगर काउंट 1 है, इट मीन्स रिकॉर्ड मैच हुआ है, तो मुझे पासवर्ड को रिट्राइव करना है, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो ही मुझे पासवर्ड की वैल्यू चाहिए। That's why I have written over here if dr dot get sql in 32 which and I have used position 0, अगर उसके अंदर 1 है मतलब काउंट के अंदर 1 है तो मैंने क्या रिट्राइव किया, dr डॉट गेट स्ट्रिंग 1 पोजीशन पे क्या है, पासवर्ड। सो वो पासवर्ड रिट्राइव करके मैंने lbl पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, दैट इज ओवर हियर दिस लेबल, उसके अंदर मैंने पासवर्ड को असाइन कर दिया, राइट। After that, obviously I want to navigate the user to view 3, right? That's why मैंने यहाँ पे क्या लिखा, that is multiview1 dot active view index plus equal to 1। मतलब जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यूजर कहाँ पे नेविगेट हो जाएगा, व्यू 3 के ऊपर यूजर नेविगेट हो जाएगा, राइट। एंड एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा, मतलब अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है, मीन्स ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है, दैट इज यूजर नेम और आंसर मैच
नहीं हुआ है, मतलब यूजर ने आंसर गलत दिया है। तो हम ये जो सेकंड लेबल कंट्रोल है फॉर मैसेज दैट इज LBL MSG2, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे दैट इज इनवैलिड आंसर, राइट। और उसके साथ साथ उसके बाद हम डेटा रीडर को क्लोज करेंगे और कनेक्शन को क्लोज करेंगे, राइट। सो दीज आर द टास्क दैट वी नीड टू परफॉर्म ऑन दिस गेट बटन, right? And after that, one task that is remaining is click event of continue button. So continue button की click event के ऊपर we have written the same statement that is response dot redirect parenthesis double quotation login page dot ASPX, मतलब हम यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करके दे देंगे ताकि यूजर जो पासवर्ड हमने रिट्राइव करके दिया है उसका यूज करके वो फिर से लॉगिन कर पाए, right? So students, these are two pages, that is change password.aspx page and forgot password.aspx page, right? So let's do one thing, हम ये एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कल हमने ऑलरेडी एक यूजर को क्रिएट किया था विथ नेम निकिशा, राइट। सो हम टुडे वी विल execute login page. So login page को मैं start page set करती हूँ and I will start execution of the application. So see over here students, browser के अंदर हमें login page मिल रहा है, right? और login page के ऊपर obviously we need to provide the credential. और कल हमने जो user create किया था that is Nikisha. So हम यहाँ पे वो लिखेंगे that is username is equal to Nikisha, password is equal to Nikisha and then I will click on लॉगिन बटन, राइट। जैसे ही मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया ऑब्वियसली मुझे एक वेलकम मैसेज मिला, उसके साथ साथ यूजर नेम मिला और लॉग आउट की लिंक मिली एंड अलोंग विद दैट आई आल्सो हैव द लिंक फॉर चेंज पासवर्ड, राइट। तो मैं ये चेंज पासवर्ड के लिंक के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, राइट। और क्लिक करने के बाद ये चेंज पासवर्ड डॉट ASPX पेज ओपन हुआ, राइट। सो as I want to modify the password, मुझे पहले old password specify करना पड़ेगा। सॉरी, old password क्या है? That is Nikisha, right? New password मैं specify करती हूँ that is 1 2 3 4. Confirm new password मैं specify करती हूँ that is 1 2 3 4. मतलब old password Nikisha था, अब वो change हो जाएगा that is to 1 2 3 4 and I am clicking on change button. राइट जैसे ही मैंने चेंज बटन के ऊपर क्लिक किया उसने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज किया है, दैट्स व्हाई उसने मुझे मैसेज दिया दैट इज पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली एंड अलोंग विद दैट मेरे पास कंटिन्यू बटन है। सो आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, सो वो मुझे लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करके दे देगा। मीन्स अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन पेज के ऊपर न्यू पासवर्ड का यूज करके मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल राइट ओवर हियर निकिशा, right? Password I will write it as 1 2 3 4 which is the new password and I will click on login button. See, so new password के हिसाब से भी हम login कर सकते हैं, right? Now I will click on log out, right? अब मुझे क्या करना है, if I want to retrieve the password, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। सो वो मुझे पहले क्या पूछेगा, दैट इज यूजर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम गलत देती हूँ दैट इज ABC, ऐसा कोई भी यूजर टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे मैसेज दिया दैट इज इनवैलिड यूजर नेम बिकॉज ABC नाम का कोई भी यूजर हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। That's why it has given me the message that is invalid username. Now I will write over here Nikisha, right? And I will click on submit button. जैसे ही मैंने निकिशा यूजर नेम देके सबमिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे यूजर नेम के साथ जो यूजर नेम मैंने एंटर किया था वो उसने डिस्प्ले किया एंड अलोंग विद दैट उसने सिक्योरिटी क्वेश्चन को रिट्राइव किया जो मैंने रजिस्ट्रेशन टाइम के ऊपर दिया था, राइट। दैट इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वो उसने रिट्राइव करके मुझे डिस्प्ले किया, राइट। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग कलर दैट इज रेड एंड आई एम क्लिकिंग ऑन गेट बटन। सो उसने मुझे क्या दिया, इनवैलिड आंसर, बिकॉज मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त फेवरेट कलर के अंदर वैल्यू दी थी ब्लैक और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है रेड। सो इसलिए उसने मुझे मैसेज दिया दैट इज इनवैलिड आंसर। नाउ लेट्स गिव इट द करेक्ट वैल्यू दैट इज ब्लैक।
राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन गेट बटन। जैसे ही मैंने गेट बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे मेरा पासवर्ड रिट्राइव करके दे दिया, दैट इज 1234, राइट, एंड अलोंग विद दैट आई हैव कंटिन्यू बटन। सो कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगी तो मुझे फिर से उसने मुझे कहाँ पे नेविगेट करके दे दिया, दैट इज लॉगिन पेज डॉट ASPX, राइट। सो फिर से मैं यहाँ पे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉग इन कर सकती हूँ, right? So students, this is all about the example, that is simulation of login control, जिसके अंदर हमने 4 pages create किए, that is for create user, or more precise we can say it as a registration. सेकेंड इज लॉगिन पेज, कि जिसका यूज करके हम लॉग इन कर सकते हैं और यूजर को पर्टिकुलर लॉग्ड इन टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। वहां पे हमने यूजर नेम डिस्प्ले किया है, चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की, एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द फंक्शनैलिटी ऑफ पासवर्ड रिकवरी। मतलब अगर यूजर को पासवर्ड याद नहीं है, देन विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट, यूजर पासवर्ड को रिट्राइव कर सकता है, राइट, एंड उसके बाद वो पासवर्ड का यूज करके वो फिर से अपने होम एरिया के अंदर एंटर हो सकता है, दैट इज लॉग इन कर सकता है बाय यूजिंग दोज credentials, right? So students, this is all about the example, that is login control simulation. I think it is application number 14 in your problem sheet, right? So this is all about for today's lecture from my side. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे।